न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। बानपुर के नरसिंह बांध इलाके में कथित जुए के अड्डे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुए का अड्डा चलाने वालों ने चित्रा से कुछ युवकों को बुलाकर इलाके के लोगों पर हमला करवाया। यह घटना 4 नंबर क्वार्टर क्षेत्र में सामने आई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पिंटू नाम का एक युवक अपने साथियों के साथ यहां नियमित रूप से जुए का अड्डा चलाता था। वहीं उससे कुछ दूरी पर नरसिंह बांध के पास कुछ युवक बैठकर शराब पीते थे। परसों रात दोनों गुटों के युवकों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि सनी नाम का एक युवक पहले शराब पीने वाले युवक के साथ उठता बैठता था, लेकिन बाद में उसने वहां जाना छोड़ दिया था। इसके बावजूद मारपीट की घटना के दौरान सनी के घर पर भी कथित तौर पर हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बेहद डरे हुए हैं। ওকে রেখেছে ওরা। কেন রেখেছে? তখন দিয়েছিল কোয়ার্টারের বাড়িতে ঝামেলা চলছিল, সেই জন্য ওরা বাচ্চায় দিয়েছিল। তো ওই ছেলে এখন বউকে রেখে এসে মদের আড্ডা ইয়ের আড্ডা সব করে পিন্টু। তো কাল সব চিত্রা ছেলেগুলোকে ডেকে মদের আসর বসিয়েছে পরশুদিন দুপুরবেলায়। দুপুরে যে ঘটনাটা হয়েছে, তারপরে যখন আমরা খেতে ঢুকেছি তখন দেখছি মাঠে ঝামেল ওদের মধ্যে, চিত্রার ছেলেগুলোর মধ্যে যারা মদ খেতে ঢুকেছে আর ওগুলো যারা জুয়ারি যারা খেলাচ্ছে ওদের মধ্যে। আর এখানে আমি যখন বেরিয়ে দেখতে এসেছি তখন আমার ছেলেকে গালে দিল, ঠিক আছে, কিন্তু বিট্টু বলে যে ছেলেটা, ওই পঙ্কজ আর বিট্টু তোর হচ্ছে ওই পঙ্কজের ভাই, ওই পদ্মুমের সাথে যারা থাকে ওরা মিলে এসে পুরো গালাগালি 14 চরে। আমি তখন বললাম একটাই রাত্রেবেলায় মানে সন্ধেবেলায়, রাত ঠিক নয়, 7:30-8টার সময় চিত্রা থেকে ওরা যাদের সাথে ঝামেলা আছে তারা আরো অনেক ছেলে নিয়ে এসে ওদের মধ্যে মারপিট হলো। এখন কি क्या नाम हुआ आपका? मेरा किरण देवी। किरण देवी। हाँ। आपका लड़का का नाम क्या है? सनी साहब। सनी साहब। किस लिए झमेला हुआ था? ঝামেলা হয়েছিল জুয়ার ওখানে। अच्छा। লোকের অন্য জায়গা ছেড়ে এনে অন্য ঘরের থেকে আড্ডাবাজি করে কাণ্ডগুলো করে। 3 নম্বর কোয়ার্টারে পিন্টু বলে একজন আছে, উনি ওনার ওয়াইফকে নিয়ে থাকতেন। ওই 4 নম্বরে, হ্যাঁ 4 নম্বরে। তো উনি যখন থাকে না ওনার ওয়াইফ, তখন অনেক ছেলেদেরকে এনে সেই মদের আড্ডা বসানো সবকিছু হয়। আর ওইখানে তো মন্দিরের সামনে নরসিংমাদের লোকেরা জুয়া খেলে, ওই জুয়ার পার্টি থেকে ওদের সাথে এদের ঝামেলা হয়েছে। তো সেইখান থেকে ঝামেলা হতে হতে এদের উপরে অ্যাটাক, সানির উপরে রাগ। কারণ যারা করেছে কেসগুলো তারাও এখানে আগে আসতো, এনাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সব করেছে, কিন্তু তারপরে দেখলো সানি যেখানে আড্ডাবাজিটা বেড়ে যাচ্ছে, খাওয়াখাওয়ি হয়ে যাচ্ছে, মদ খাওয়া গাঁজা ফাজা, ও বন্ধ করে দিল সবার আসা। ও নিজে একা থাকতো এখানে, মাঝে মাঝে আন্টি এসে থাকতেন। তো ওটাই রাগ। আর তারপরে আমরা চোর টোরও ধরিয়েছি, মানে সানি আর আন্টি মিলিয়ে চোর টোর ধরিয়েছে পুরো। সেই সব রাগের ইয়েতে কালকে এসে ওর উপর হামলা। তার আগে গালাগাল, তার আগে ইট ছোড়া ঘরে রীতিমতো সবকিছু করে গেছে। আমরা পাশে থাকি, আমরা বেরিয়েছি, তবে গিয়ে চেঁচিয়েছে আন্টি প্রথমে, তারপরে ওরা পালিয়েছে। তারপরে পুলিশ এসছে, যাই হোক পুলিশ তারপরে আবার দুটো পার্টিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু এই ছেলেটার কোনো দোষ নেই। আপনি কোথায় থাকেন? পাশে? পাশের বাড়ি। পাশে। কি নাম আপনার? আমার শ্রেয়া। विभिन्न मांगों के समर्थन में 23 दिसंबर से हड़ताल पर चल रही आशा कर्मियों ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम चौराहे पर पथावरोध कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते जीटी रोड और जीटी रोड से स्टेशन जाने वाला मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान जब कुछ लोग रास्ता खाली कराने की कोशिश करने लगे तो आशा कर्मियों के साथ उनकी बहस भी हुई। इसके बावजूद आशा कर्मी अपने मांगों पर अड़ी रही और काफी देर तक सड़क जाम कर नारेबाजी करती रही। आशा कर्मियों ने मांग की कि उन्हें न्यूनतम 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनका वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता, जिसे अब वे बर्दाश्त नहीं करेंगी। बिना पारिश्रमिक के अतिरिक्त काम कराए जाने का भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया। आशा कर्मियों के इस पथावरोध के कारण आसनसोल नगर निगम चौराहे पर लंबा जाम लग गया और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही।
আমাদের বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে না, দিনের পর দিন আমাদের বকেয়া টাকা বাকি আছে এবং 15,000 টাকা আমরা বেতন বৃদ্ধি করতে বলেছি এবং কোনো আমাদের আশা দিদি যদি মৃত্যু হয় তার অবসর বাড়ির পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে। আর এখানে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে, হ্যাঁ, সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, তার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আপনার নাম? সীমা সাহু। रेलवे द्वारा रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने के निर्देश के विरोध में सोमवार को बानपुर स्टेशन बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 20 से 30 वर्षों से यहां व्यवसाय कर रहे हैं और यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे में बिना किसी पुनर्वास के दुकानों को हटाना उनके और उनके परिवार के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि रेलवे बार बार उन्हें परेशान कर रहा है। उनका कहना है कि वो विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। घटनास्थल पर पहुंचे टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर दुकान हटाने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक रेलवे की ओर से उचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक दुकानदार यहाँ से नहीं हटेंगे। इससे पहले भी एक मरतबा आया रहा, नोटिस दिया रहा, दागू को मारा वहाँ पे, फिर बोला गया रहेगा मतलब 3 फुट करके जगह चाहिए, तो फिर 3 फुट करके पीछे से दुकान के पीछे से जगह छोड़ दिया रहा। तो बोला काम करेंगे, फिर अगर हमको अगर जगह का दरकार पड़ेगा तो फिर से हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। तो उस हिसाब से तो 3 फीट वो जगह ले लिया, तो फिर कोर कार के वो अपना गेट का काम किया है। तो फिर अभी तक तो कुछ ऐसा बात नहीं बोला गया। तो फिर सेल वाला आया बोलने के लिए, हटाने उठाने के लिए। तो अब क्या हुआ जे फिर से ऐसा आप लोग को रास्ता में आना पड़ा? तो रास्ता में वो इसीलिए फिर दादा को बोलना पड़ा कि मतलब दुकान उकान के लिए कहीं से हटाने के लिए तो हम लोग तैयारी है, लेकिन कहीं पे भी अगर दे दे साइड में लगाने के लिए जगह तो हम लोग का बीवी बच्चा थोड़ा चलेगा, पेट चलेगा और क्या। जब आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमी। केस दिया कि देखिए हम लोग तो सेल का जमीन में बैठे हैं, रेल का बाउंड्री जहाँ तक है वहीं तक है। अब वो लोग में क्या गल्प हुआ है, वो आके बोल रहा हटाओ यहाँ से। तो वही हम लोग बोल रहे इतना दिन से हम लोग है, कम से कम 35-40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बेच रहे, कमा रहे हैं। तो हम लोग को कोई जगह दे दे यहीं पर ही कहीं, तो हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? कोई जगह वगैरह के लिए भी आप लोग को बोला गया है? लोग अभी यही चाह रहे हैं, जगह के लिए चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को हटा देगा तो हम लोग का बीवी बाल बच्चा है सब कैसे चलेगा संसार। कहीं जगह दे दे, हम लोग को हटने के लिए तैयार है। वो अपना डेवलपमेंट करे, हमको कोई फर्क नहीं है। हमको कहीं जगह दे दे, बैठने का, बेचने का, कमाने खाने का, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम हटा दें। अगर बाई चांस रेलवे का प्रशासन से कोई जगह आप लोग को नहीं दिया जाता तो आप लोग क्या? अब नहीं दिया जाएगा तो फिर दादा को पकड़ेंगे, दादा अगर जो समझेगा उचित करेगा। कब किया था नोटिस? हो गया 2-3 बार दे चुका है, लेकिन अभी तक हटाया नहीं, खाली आके बोलता है अभी तक। আপনার নাম? মোহাম্মদ ইমরান আলী। এদের এই ব্যবসা করার জন্য, এদের সংসার চালানোর জন্য আরেকটা জায়গা আপনারা না দেবেন, এদের কাউকে আমরা উঠতে দেব না এখান থেকে। আপনারা আগে এদের একটা জায়গা দিন, রেল কোথাও দেখে সুটেবল জায়গা যেখানে ব্যবসা করতে হবে। এবং আগামী সপ্তাহে রেলের একটা স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং আছে, আমরা সেখানেও এখানকার যিনি সাংসদ তার অফিস থেকে আজকে সকালে আমাকে ফোন করেছিল অন্য ইস্যু নিয়ে। আমরা সেখানেও মাননীয় সাংসদকে অনুরোধ করব এই বিষয়টা, সাথে বানপুরের স্টেশনের আরও কীভাবে উন্নয়ন করা যায়। যে মানুষের প্রপোজালগুলো আছে, অনেক ট্রেন এরা এখনও অবধি চালু করেনি, যে ট্রেনগুলো আপনার করোনার আগে বন্ধ করেছিল। আবার কিছু লোকাল ট্রেনের ভাড়া এক্সপ্রেস ট্রেন হিসেবে নিচ্ছে। এই যে একটা দ্বিচারিতা, এটা বন্ধ করতে হবে রেলকে। এবং আমরা চাই যে এই আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা এদের আগে একটা জায়গা দিক, তারপরে ভাঙুক। আবার ওইদিকে এদের যা লেআউট দেখছিলাম, ওইদিকে আরেকটা হনুমান মন্দির আছে, ওই মন্দিরটাও কিন্তু ডেমোলিশেরা করবে। তো তাই আমরা বলবো যে যেটুকুনি জায়গা আপনাদের দরকার সেইটুকুনি জায়গার মধ্যে কাজ করুন। যারা এখানে 25 বছর 40 বছর ধরে ব্যবসা করছেন তাদের আগে আপনারা একটা জায়গা দিন, তারপরে হবে। রেলের আরও অনেক কাজ আছে, হুট করে আজ বললে কালকে কেউ উঠে যাবে না। যখনই নির্বাচন আসে এই জিনিসগুলো আপনারা আপনাদিকে দিয়ে, মানে বিজেপি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দিয়ে করায়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ
জানাচ্ছি। এবং একসাথে দেখছেন এখানে কত মানুষজন জড়ো হয়েছে। রেল যদি এই জিনিস করতে চায় আমরা প্রত্যেককে নিয়ে এখানে ধর্নায় বসে যাব। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। बाराबनी के पानुड़िया फुटबॉल मैदान में पश्चिम बर्धमान जिले के लगभग 15 सर्कलों की खेल प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। बाराबनी के विधायक और आसनसोल कारपोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान के 2 जिला परिषद सदस्य, बाराबनी पंचायत समिति के सभापति असित सिंह, बाराबनी ब्लॉक के असिस्ट उन्नयन अधिकारी शिलादित्य भट्टाचार्य, अक्षय भट्टाचार्य आदि उपस्थित थे। अवर स्कूल इंस्पेक्टर अक्षय भट्टाचार्य ने क्रीड़ा परिसर में एक मसाल स्थापित किया और बच्चों और खिलाड़ियों को लेकर एक मार्च पास्ट किया। প্রধান শিক্ষক ছিলাম, অনেক পরিচিত ছাত্রছাত্রী আমার এখানে আছে। তাই প্রতিকূলতার মধ্যে আজকে স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কারণে যে আমরা জানি আমাদের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীও ব্যস্ত আছেন, এসআই সাহেবরা ব্যস্ত আছেন, এখনো চলছে। তার মধ্যে থেকে অনুষ্ঠান করা খুবই কঠিন ছিল। প্রথমে আমাদেরকে বলা হয়েছিল, একটা ডেট দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ধন্যবাদ। আজকের এই শুভ উদ্বোধন আমার সাথে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, ডিআই সাহেব আছেন, আমাদের কর্মাধ্যক্ষ আছে, জেলা স্থিত হয়েছেন এবং সর্বোপরি যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছেন, যারা ছোট ছোট মানে ছেলেমেয়েরা এসছে, তাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, প্রতি শুভেচ্ছা রইল। খুব সুন্দর মানে সাজানো হয়েছে, যারাই করেছে খুব সুন্দর করেছে এবং প্রতিযোগিতা যেন সুন্দর হয় এবং যে কোনো ধরনের জানাবো আমাদের ডিপার্টমেন্টকে, রাজ্য সরকার ডিপার্টমেন্ট, যে যারা এই দায়িত্বটা বারাবণী বিধানসভাকে দিয়েছে, বারাবণী ব্লকে করছে এবং গোরান্ডির মাধ্যমে। আমি আপনাদের চিত্রের মাধ্যমে যারা যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা এসছেন, বাইরে থেকে এসছেন, যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছেন, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এসছে, যারা মানে প্রতিযোগিতায় উঠে এসছে সাব ডিভিশন থেকে।
दुर्गापुर के सेकेंडरी रोड पर मंगलवार को एक भयावह सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार से आ रही एक छोटा हाथी 4 पहिया वाहन ने सड़क किनारे खड़े टोटो और एक साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टोटो चालक, एक बाइक सवार और एक मिठाई दुकान के मालिक समेत कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त छोटे हाथी वाहन में तोड़फोड़ की, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गाड़ी টাটা এসি গাড়ি যাই না 5 জনকে মেরে দিয়ে চলে গেল। কাকে কাকে? আমাদের নিজেদের ছেলে সেকেন্ডারি ছেলে। তারা কি অবস্থায় আছে? কারো পা ভেঙে গেছে, কারো কোমর ভেঙে গেছে, কারো ব্লিডিং হচ্ছে। মানে মেয়ে ছেলে ছিল নাকি? না না, 5টা ছেলে আর টোটোটাকে ওদের পরিবার যাচ্ছিল, তাদের অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আমরা চাইছি তোর ভালো হোক, আমার হসপিটাল যাচ্ছি দাদা। আমি বলতে পারছি না। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। जयदेव मेले से पहले अजय नदी पर अस्थायी पुल की अनुमति नहीं मिलने से कांकसा के विदविहार इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। विदविहार से जयदेव केंदुली को जोड़ने वाले जयदेव सेतु पर भाजपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और करीब 1 घंटे तक महत्वपूर्ण सड़क अवरुद्ध रही। प्रदर्शनकारियों ने गलसी के विधायक नेपाल घुरुई के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेता जयदीप बंदोपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले पुल निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अंतिम समय में अनुमति रद्द कर दी गई। उन्होंने चेतावनी दी कि काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विदविहार ग्राम पंचायत सदस्य स्वपन सूत्रधर ने कहा कि अस्थायी पुल नहीं बनने से लोगों में नाराजगी है और पंचायत भी चाहती है कि जल्द पुल का निर्माण हो।
আমরা দীর্ঘ 100 বছরের পুরনো যেখানে কবি জয়দেব এই পদ্মাবতী এই মেলাকে স্থাপন করেছিলেন লক্ষণ সেন, ওনার আমলে এই মেলার আজকে স্থাপনা, যেখানে মা গঙ্গা উজানে এসেছিলেন, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন, সেই জায়গায় প্রদীপ মজুমদারের চক্রান্তে, নেপাল ঘুরিয়ে চক্রান্তে, তৃণমূল কংগ্রেসের চক্রান্তে কাজল শেখ পয়সা লুটবে, তৃণমূল কংগ্রেস লুটবে, এখানকার গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের পেটে রুজি রোজগার এই মেলাকে কেন্দ্র করে চলতো। এই পশ্চিম বর্ধমান থেকে সমস্ত মেলাকে তুলে নেওয়া হয়েছে, মেলাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এই মেলাকে বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। নিয়ে প্রদীপ মজুমদারের নেতৃত্বে এই মেলা বসাবে, যেখানে মমতা ব্যানার্জির ছবি থাকবে। এই কবি জয়দেবের প্রতিষ্ঠিত বহু পুরনো মেলাকে ঐতিহ্য থাকতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়ছি। আগামী দিনে আমরণ অনশন করবো, আমরণ অনশন করবো। হ্যাঁ, পুলিশের আমাদেরকে পুলিশের ক্ষমতা নেই যে মেলার রাস্তা করার। পুলিশ আমাদের উপর লাঠি চোয়ার করছে, বল প্রয়োগ করছে। পুলিশ হাই হাই, প্রদীপ মজুমদার হাই হাই। বড় বড় কথা। আমার নাম জয়দীপ ব্যানার্জি। দেখো, বিজেপির পক্ষ থেকে এটা অবরোধ করেছে, ওদের দাবি নিয়ে করেছে। অবরোধ যে পার্টি করতে পারে, এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। রাস্তা তো আমরাও চাই এবং ওরাও রাস্তার দাবিতে করেছে। ঠিকই কথা, জয়দেব মেলা একটা ঐতিহ্যবাহী মেলা, এটাকে একটা অস্থায়ী সেতু নিয়ে আমাদেরও দাবি রয়েছে। আমরা ব্লক বিডিও অফিসে যাচ্ছি, আমরা প্রদীপ মজুমদারকেও বলেছি, দেখছে ওরা। রাস্তা এখনও কোনো পুরো ফাইনাল রেজাল্ট দেয়নি, তবে বিডিও সাহেব গতকাল 29 তারিখ একটা কথা আমাদেরকে বলেছে যে আমাদের প্রশাসন কোনো দায়িত্ব নেবে না রাস্তার ব্যাপারে, যদি সাধারণ মানুষ দায়িত্ব নিয়ে করতে পারে করবে। এটা পঞ্চায়েতও পড়বে। এরপরে হয়তো আরও অশান্তি বেড়ে যেতে পারে, আরে প্রশাসন দেখুক, তার জন্য ওরা ওদের দাবি নিয়ে কর্মসূচি করতেই পারে। আমার নাম স্বপন সূত্রধর, বিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। बांकुड़ा के बरजोड़ा स्थित वीर सिंहपुर मैदान में पाक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वोट आते ही दुर्योधन दुशासन बंगाल में आ जाते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि हम चाहते तो आपको एक कदम भी बाहर न निकालने देते, लेकिन यह हमारी संस्कृति नहीं है। सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीएसएफ को जमीन न देने के आरोप को ममता ने सिरे से खारिज किया। घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल में होती है, कश्मीर में नहीं? पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए केंद्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बंगाली भाषा बोलने पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाषण की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने एसआईआर विशेष गहन परीक्षण प्रक्रिया को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर नाम पर आम लोगों को, खासकर बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि एआई के जरिए करीब 54 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो आंदोलन सिर्फ बंगाल में नहीं दिल्ली तक होगा। বিজেপির ডাকাতগুলো, ডাকাত দস্যুগুলো লেপের তলায় ঘুমিয়ে আছে। তারা নাকি ওনার বাচ্চা, বাচ্চা না চৌবাচ্চা, জিজ্ঞেস করুন ভালো করে। নাম কাটছো মানুষের, মানুষের ওপর অত্যাচার করছো, কাউকে কাউকে দিল্লিতে পাঠিয়ে
ইলেকশনের সময় দিল্লি কা লাড্ডু দেখাচ্ছ, তাদের বলি दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज़्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है, आप दिल्ली संभलाइए। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बांग्ला सामलाনোর জন্য বাংলার মানুষ আছে, দিল্লি সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাবে। আজকে পরিযায়ী শ্রমিকদেরও মাঝে আমরা 5,000 টাকা করে দিচ্ছি, কর্মশ্রীর কাজ দিচ্ছি, শ্রমশ্রীর। আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাব। যারা বাইরে আছেন এখনো নাম তোলেননি, ফর্ম ফিল আপ করে নাম তুলুন। আর 136 কোটি যেটা 1.36 কোটি যেটা বাদ দিয়েছে, 1.36 কোটি প্রত্যেকটা নাম যেন ওঠে। ওদের টার্গেট হচ্ছে ইলেকশন কমিশনকে সামনে রেখে, সে হচ্ছে বিজেপির বড় দালাল। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फार्निचर दुनिया।